Hello everyone, hope you all are doing very well. Welcome to my YouTube channel, Accounting Knowledge. In this lecture, we are going to learn about the valuation of goodwill and shares. Okay, this topic come in TYBAF course in semester 5 and the same topic also come in FYBBA course in semester 2 of financial accounting subjects. So it's my request to all TYBAF students as well as FYBBA student, please subscribe my channel and stay connected with me so I can bring in future all topic which is related to financial accounting. Okay student, so let's explain you that the valuation of goodwill and the valuation of shares. This topic is divided into two parts. That is, first we have to learn in detail about the valuation of goodwill. After then, we have to learn about the valuation of shares. So in this lecture, first we will going to learn what is goodwill, what are the methods of goodwill. Then we will going to do some practical problem which is related to goodwill, and after then we will going to start what is shares and how the valuation of shares has to be took place. Okay students, so once again it's my request, please like my channel, please subscribe and share also, so I can bring more and more topic for you, okay, which is related to your financial accounting subjects. Okay, so let's move forward. In this video lecture or in my first slide, I am going to explain what is goodwill. Okay. So what is goodwill and what are the meaning of goodwill? Okay. So if I will ask you what is goodwill, so you all are know the goodwill is what? Goodwill is intangible assets, you will say, or you will say that goodwill is the name, fame, reputation of any business firm, isn't it? Let's learn in detail about what is goodwill. So here you can say, what is goodwill? Goodwill means the reputation of business concern which attract the customer. Okay, क्या होता है goodwill? Goodwill ये क्या है? Reputation, image, name, fame of any business concern जो क्या करता है? Customer को attract करता है. Now I will say it's not only attract the customer, okay, but it attract all the stakeholders, those who are connected with that firms or that business. Okay, I will say the goodwill, the name, fame, reputation, image of any firm give benefit to the customer as well as to the investor as well as to the employees, to the shareholder. It means that all persons are getting benefit with the help of goodwill. Understood? Okay, goodwill distinguish an old established business from a new business. Okay students, now what is goodwill? क्या करता है goodwill? Goodwill क्या करता है? दो बिजनेस फर्म को कंपेयर करने में हेल्प करता है. ओके ओके, फॉर एग्जांपल दैट इज इफ यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन एनी फर्म, ओके, you have two firms, okay, so you have to select which firm is better. In that case में the goodwill will going to help you. Understood? The goodwill will going to help you कि in which firm you have to invest, which firm provide you the more returns. Okay, so that is the goodwill क्या करता है? हमको old business as well as the new business में compare करने में help करता है. Okay, What is goodwill? Goodwill is also intangible assets. Okay, तो ये मैंने पहले ही बोला goodwill क्या होता है? Goodwill intangible assets होता है, but it is not the fictitious assets. Students, please be remember. Okay, goodwill, patent, copyright ये सब क्या होता है? Intangible assets होता है, लेकिन ये कभी भी fictitious assets नहीं होता. Now you will say what is fictitious assets? Isn't it? Okay, so what is fictitious assets? जो आपने already पढ़ा हुआ है. Fictitious assets is also called as deferred revenue expenditure, isn't it? Okay, आपने already पढ़ा है classification of expenditure and classification of receipt, है कि नहीं? तो classification of expenditure में there are three types of expenditure, that is capital expenditure, revenue expenditure and one more important expenditure that is called the deferred revenue expenditure. क्या होता है ये expenditure? It is a such type of expenditure
जो क्या होता है, जिसका एडवांटेज और बेनिफिट हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ ईयर्स में मिलता है. अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ. ओके, जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ तो स्टार्टिंग में मैंने क्या रखा, उसका एक इनॉग्रल फंक्शन रखा. वो इनॉग्रल फंक्शन में मैंने काफ़ी ह्यूज एक्सपेंडिचर कर दिया है कि नहीं. अब जब मैंने उसका ह्यूज एक्सपेंडिचर कर दिया तो उसका रिटर्न क्या मुझे 1 साल के अंदर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, है कि नहीं. उसका रिटर्न मुझे नंबर ऑफ ईयर्स में मिलता है. इट कैन बी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स. ओके, उसका रिटर्न मुझे मिलता है. क्या होता है, जो ये जो एक्सपेंसेस है, जो मैंने इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर किया हुआ है, ये एक्सपेंस मैं क्या करूँगी, एवरी ईयर स्मॉल स्मॉल अमाउंट अपने प्रॉफिट में से रिटर्न ऑफ करते जाऊँगी. क्लियर. तो दैट इज ओनली कॉल्ड एज फिक्टिशियस असेट्स. इट इज अ सच टाइप ऑफ असेट्स विच हैव अ ह्यूज एक्सपेंसेस, लेकिन इसका बेनिफिट जो रहता है हमको नंबर ऑफ ईयर्स में मिलता है. अंडरस्टूड. ओके, सो इट इज अ इंटेंजिबल असेट्स. गुडविल क्या होता है, हमारा इंटेंजिबल असेट्स होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कभी भी फिक्टिशियस हमारा असेट्स नहीं होता है. क्लियर. गुडविल अराइजेस ड्यू टू लोकेशन, स्किल्स ऑफ प्रोफेशन, efficient of management as well as patent. Now how the goodwill has to be created. goodwill कैसे जनरेट होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे इंक्रीज होता है. कैसे इंक्रीज होता है, गुडविल इज इंक्रीज ड्यू टू द लोकेशन. अगर आपका बिजनेस फर्म कोई भी वेल रेपुटेड प्लेस पे स्टैब्लिश है, अच्छे मार्केट एरिया में स्टैब्लिश है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, आपका फर्म डे बाय डे ग्रो करेगा. और अगर आपका फर्म डे बाय डे ग्रो करेगा तो उसके वजह से क्या होगा, उसका गुडविल भी इंक्रीज होगा. नेक्स्ट वन इज दैट गुडविल इज ऑल्सो इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ स्किल्स ऑफ प्रोफेशनल. ओके, अगर आपके बिजनेस फर्म में ऑल प्रोफेशनल्स persons are there, they have the skills, knowledge and qualification, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, आपके बिजनेस को और आपके फर्म को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ रेपुटेड CA एज अ अकाउंटेंट, यू हैव अ दैट इज वेल स्टैब्लिश्ड मैनेजर्स, यू हैव अ रेपुटेड डायरेक्टर्स. ओके, तो वो क्या करते हैं, आपके फर्म्स को फ्यूचर में ग्रो करते हैं, तो जिसकी वजह से आपके फर्म का गुडविल इंक्रीज होता है. Okay, next one is that efficiency of the management. Okay, if you have a very efficient manager that you already know, कोई भी बिजनेस फर्म को आगे इंक्रीज करने में और ग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ रहता है, मैनेजर्स का हाथ रहता है. अगर आपके पास बहुत ही इफिशिएंट मैनेजर हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली उसके वजह से क्या होगा, आपका गुडविल इंक्रीज होता है. एंड द लास्ट वन इज दैट, नॉट द लास्ट बट इफ़ यू हैव अ पेटेंट, अगर आपने अपने फर्म का, अगर आपने अपने बिजनेस का पेटेंट लेके रखा है, इट्स मीन दैट इफ़ यू आर टूक अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, इट्स मीन दैट अगर आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके रखा हुआ है, दैट मीन्स नो वन कैन कॉपी योर बिजनेस स्टाइल. ओके, मतलब आपका जो बिजनेस स्टाइल वो एक यूनिक है, कुछ अलग है, जिसका आपके पास लाइसेंस है. ओके, जिसका आपके पास अप्रूव परमिशन है गवर्नमेंट, और उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से भी क्या होगा, आपका गुडविल इंक्रीज होता है. तो व्हाई द गुडविल इज इंक्रीजेस, द गुडविल इज इंक्रीज ड्यू टू द लोकेशन, skills of professional, efficient of management and due to the patent also. Okay, goodwill is valuable assets when the firm earning profit and its value less assets when the firm is incurring loss. Understood. goodwill का वैल्यू कभी होता है, goodwill is a valuable assets, मतलब अगर आपका कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है पास्ट प्रीवियस ईयर में. ओके, पास्ट प्रीवियस ईयर में अगर आपका फर्म ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपका जो गुडविल है वो एज अ वैल्यूएबल असेट्स बोला जाएगा. इट्स मीन दैट वो गुडविल का आपको रिटर्न मिलेगा, आपको अमाउंट मिलेगा विच हैज़ टू बी पे इन मनी. अंडरस्टूड. लेकिन अगर वही बिजनेस क्या कर रहा है, लास्ट प्रीवियस ईयर में लॉस इंकर किया हुआ है, तो लॉस जब इंकर किया हुआ है तो गुडविल विल नॉट क्रिएट एनी असेट्स. अंडरस्टूड. उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है. समझ में. तो गुडविल विल बी वैल्यूएबल असेट्स. गुडविल का आपको रिटर्न बेनिफिट तभी मिलता है जब आपका फर्म क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है. ओके, सो आई थिंक सो द फर्स्ट स्लाइड्स यू अंडरस्टूड वेरी वेल. Okay, so let's move forward in the next slides. Here you can see
व्हेन द गुडविल इज वैल्यू, अभी तुमको ये तो पता हो गया गुडविल होता क्या है, क्या होता है गुडविल। गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट्स है। गुडविल क्या है, रेपुटेशन, नेम, फेम है। गुडविल इंक्रीज कभी होता है, दैट ऑल ऑलरेडी वी लर्न। ओके, अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ओके, कि गुडविल कैलकुलेट कभी करना है और गुडविल को वैल्यू कभी करना है। समझ में आ रहा है? ओके, सो व्हेन द गुडविल इज हैज़ टू बी वैल्यू इन फ्यूचर, अगर आप कोई फर्म में जॉब कर रहे हो और इन विच पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू कैलकुलेट योर गुडविल, कब तुमको अपने बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, और कब आपको गुडविल की ज़रूरत पड़ती है, इन द अनदर सेंस व्हाट वी कैन से, कब आपको गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। कब गुडविल की ज़रूरत पड़ती है, व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसीजन ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको अपने बिजनेस को क्या करना है, किसी अनदर पार्टी को सेल करना है। तो जब अगर आपके बिजनेस को किसी अनदर पार्टी को सेल करना है, प्रीवियस ईयर में आपकी कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया था, तो डेफिनेटली उस समय आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू शो दैट गुडविल इन योर असेट्स, और वो असेट्स का आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलेगा, है कि नहीं, क्या मिलेगा, परचेस अमाउंट मिलेगा। ओके, सो दैट इज व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड, जब आपको बिजनेस सोल्ड करना पड़ता है, इन दैट केस में यू आर गेटिंग रिटर्न। ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन द गुडविल हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, कंप्लीट चेंज इन ओनरशिप, या ऑलरेडी आपने एसवाईएफ में पढ़ा हुआ है, दैट इज चैप्टर इन अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन। ओके, अमालगमेशन में आपको पता है दैट इज आपको परचेज कंसिडरेशन मिलता है इफ यू वांटेड टू मर्ज विथ एनी कंपनी, अगर आप अपने कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो, ओके, या तो आप उसको अमालगमेशन में कर रहे हो, तो इन दैट केस में क्या होता है, आपको उसका परचेज कंसिडरेशन मिलता है। ओके, यू नो दैट इज देयर आर टू कंपनी, दैट इज वन इज अ परचेसर कंपनी और अनदर इज अ सेलर कंपनी। तो इन दैट केस में क्या मिलता है, दैट इज जो भी परचेसर कंपनी रहती है वो क्या करती है, परचेज कंसिडरेशन पे करती है, क्लियर है, अनदर कंपनी को। तो दैट इज इन दैट केस में जो परचेज कंसिडरेशन पे किया जाता है उसके अंदर गुडविल का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ये आपने एसवाईएफ में पढ़ा है। तो अगेन जब मर्ज होती है कोई कंपनी, अमालगमेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इन दैट केस में भी क्या करना रहता है, आपको गुडविल को क्या करना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है, उसको वैल्यू करना रहता है। नेक्स्ट, व्हेन द गुडविल हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियल चेंज इन ओनरशिप। ओके, आपने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया है, वो पार्टनरशिप फर्म में क्या हो गया, कोई थर्ड पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है। तो जब कोई थर्ड पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है, तो ये भी आपने पढ़ा था कि उसको क्या लेके आना पड़ता है, या तो ही हैज़ टू ब्रिंग अ कैश इन फॉर्म ऑफ कैपिटल और ही हैज़ टू ब्रिंग अ गुडविल, कुछ ना कुछ बिजनेस में लेके आना पड़ता है। एट दैट टाइम पर भी तुमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। अंडरस्टूड? सो रिटायरमेंट, कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो भी गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है, किसी का डेथ हो गया तो भी गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड दिस ऑल थिंग यू हैव लर्न इन वेरी वेल इन द चैप्टर पार्टनरशिप फर्म, इजंट इट? नेक्स्ट वन इज दैट फॉर टैक्स पर्पस, ओके, you have to calculate the goodwill for the tax purpose also, when you are paying the wealth tax, gift tax, corporate tax, ये सब टैक्स जब आप पे करते हो at that time you have to calculate the profit, है कि नहीं? तो in that case also you have to calculate the goodwill, okay? So when the goodwill has to be value, जब आप अपने goodwill को सोल्ड करते हो, ओके, मर्ज होती है कोई कंपनी, अमालगमेट होती है या तो एब्जॉर्व की जाती है, ओके, अगर उनका ओनरशिप क्या हो रहा है, पार्शियली ओनरशिप चेंज होता है, तो इन दैट केस में हमको गुडविल को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, ओके, वैल्यू करना पड़ता है और उसका अमाउंट हमको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है इन असेट साइड। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर यू कैन सी हाउ द गुडविल इज वैल्यू, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आप लोग बोलोगे कि मीन्स इज दिस थियरी चैप्टर? नो, इट्स नॉट अ थियरी चैप्टर, इट इज़ टोटली अ प्रैक्टिकल चैप्टर। तो ये प्रैक्टिकल में हम लोग क्या पढ़ने वाले, दैट ओनली वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द गुडविल इज़ वैल्यू। अभी मैंने आपको बता दिया कि गुडविल को वैल्यू कब करना है, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। अंडरस्टूड? प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ने वाले कि गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है। ओके, हियर यू कैन सी
ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा टॉपिक इसी के ऊपर डिपेंड है कि नहीं. व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ. ओके, गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आपने 2019 में 20 लाख का क्या किया है? प्रॉफिट अर्न किया है 2019 में. लेकिन गुडविल हैज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्यूचर, मतलब टू फ्यूचर 3 ईयर्स में आप कितना प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हो. तो फ्यूचर 3 ईयर्स में कितना प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हो, वो तो प्रॉफिट जो रहेगा आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहेगा, है कि नहीं, जो क्या होता है पास्ट ईयर के प्रॉफिट पे डिपेंड होता है. अंडरस्टूड? दैट इज ओनली कॉल्ड एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? इट इज अ सच टाइप ऑफ प्रॉफिट विच इज डिपेंड अपॉन द पास्ट प्रॉफिट. ओके, विच इज डिपेंड अपॉन द पास्ट प्रॉफिट. पास्ट प्रॉफिट को देखकर हम लोग क्या करते हैं, उसमें सम एक्सपेंसेस सम इनकम ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिसाइड करते हैं. और वही फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के ऊपर क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट होता है. So how the goodwill has to be value? Goodwill always value as per the future maintainable profit. Okay, that we are going to learn in detail in the next slide. Okay, goodwill is paid for extraordinary or abnormal profit. Okay, और goodwill कैसे calculate होता है? Again that is also the सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. गुडविल हमको कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है? इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज पर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एबनॉर्मल प्रॉफिट. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, ओके, आपका कंपनी का प्रॉफिट जो प्रीवियस 3 ईयर्स में कितना आ रहा था, एवरी ईयर्स 20 लाख, 18 लाख, 22 लाख, यही स्केल में अराउंड प्रीवियस ईयर आप अर्न कर रहे थे. लेकिन अचानक से सडनली आप 2019 में क्या किया, आपने 20 लाख की जगह क्या किया, 50 लाख प्रॉफिट अर्न कर लिया. तो जब आपने 50 लाख प्रॉफिट अर्न कर लिया तो दैट इज अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ओके, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट विच इज बियॉन्ड दैट नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट? एबनॉर्मल प्रॉफिट विच इज बियॉन्ड दैट नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट. अंडरस्टूड? तो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट भी हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करते हैं. क्लियर व्हाट आई सेड? That also we are going to learn in detail in the next slides. Ki what is super profit? Goodwill is value on the basis of methods of valuation. So again ये चैप्टर में which is very important, that is method of valuation of goodwill. तो दैट ऑल इज अ थियरी पार्ट, बट यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो गया. ओके, कि हमको एक्चुअल में ये चैप्टर में पढ़ना क्या है. तो हमको ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमको ये चैप्टर में पढ़ना है मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैथड्स ऑफ valuation of goodwill. Okay, methods of valuation of goodwill, which is very important. Okay, means how we have to calculate the goodwill. Okay, so the methods of valuation of goodwill is classified into 2 types. Methods of valuation of goodwill is classified into 2 types. So please concentrate here. अगर ये slide आपको समझ में आ गया तो आगे का सब slides आपको समझ में आएगा. तो here you can say, जब भी हमको गुडविल कैलकुलेट करना रहता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना रहता है और उसके 2 टाइप्स होते हैं. एक तो होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेथड और दूसरा क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड. फर्स्ट मेथड कौन सा होता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेथड, एंड सेकेंड वन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड. अंडरस्टूड? ओके, इन दैट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेथड में, ओके, अगेन देयर आर 2 टाइप. First one is that is FMP method. First one is FMP method. So first method is that here you can say number of years of purchase of FMP method. Understood? Because FMP method किसके अंदर आ रहा है, number of years of purchase method में आ रहा है. तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बोलेगा calculate goodwill as per number of years of purchase of FMP method. Understood? Second one जिसके अंदर आता है
नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये चैप्टर में हमको दो चीज पढ़ना है, व्हाट इज एफएमपी एंड व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। क्लियर? सो सबसे पहला मेथड होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेथड। दैट मेथड इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एफएमपी मेथड, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर? पहला टाइप आपको समझा। फर्स्ट टाइप क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट गुडविल एज पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एफएमपी मेथड और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब हमको क्या पढ़ना है, व्हाट इज एफएमपी एंड व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। क्लियर व्हाट आई सेड हियर? द सेकेंड वन इज दैट कैपिटलाइजेशन मेथड। इन दैट अगेन कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी मेथड and again here capitalization of super profit method. Clear what I said? So second method is that capitalization method. capitalization में दो चीज आ सकता है, या तो capitalization of FMP method या तो capitalization of super profit method. Clear what I said? समझा सबको? तो इट्स मीन दैट ये जो गुडविल का हमारा चैप्टर है, ये पूरा गुडविल का जो चैप्टर है वो टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड है। कितने टाइप्स में डिवाइड है? मतलब अगर एग्जाम में अगर आपको सम पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा, कैलकुलेट गुडविल एज पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेथड, फर्स्ट वन। कैलकुलेट गुडविल एज पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड वन कैलकुलेट गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी मेथड और कैलकुलेट गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। So it means that in that chapter there are total 4 types of methods of calculation of goodwill. कितने मेथड होते गुडविल को कैलकुलेट करने के? 4 मेथड होते। अभी सम टाइम वो क्या बोल देगा एग्जाम में, कैलकुलेट गुडविल एज पर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेथड। सिर्फ इतना बोलेगा। जब सिर्फ इतना बोलेगा तो आपको क्या करना है, दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एफएमपी एज वेल एज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अंडरस्टूड? या समटाइम एग्जाम में ऐसे भी बोल सकता है कैलकुलेट गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड। जब अगेन सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड बोल दिया तो आपको क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों मेथड से आपको क्या करना रहेगा, गुडविल को कैलकुलेट करना रहेगा। क्लियर? सो हम क्या करने वाले, आगे ये चारों मेथड्स पढ़ने वाले इन डिटेल। क्लियर व्हाट आई सेड? सो ये चारों मेथड पढ़ने से पहले मैं बता दूं इसमें पढ़ने क्या वाले हम लोग। ओके, हर चारों मेथड में देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। अंडरस्टूड? दैट फॉर्मूला वी हैव टू डू एंड आफ्टर देन वी हैव टू डू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन दैट। तो मैं क्या करूँगी, हर एक स्लाइड में वन मेथड आपको डिटेल में और उसके फॉर्मूलेज मैं आपको बताने वाली हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर व्हाट आई सेड? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे, फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। और फर्स्ट मेथड क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एफएमपी मेथड, है कि नहीं? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एफएमपी मेथड, तो ऑलरेडी मैंने बोला जब एफएमपी आ गया, एफएमपी का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बताया था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे थियरी पार्ट मैंने ऑलरेडी बताया, व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्या होता है? इट इज अ सच टाइप ऑफ प्रॉफिट विच इज डिपेंड अपॉन द पास्ट प्रॉफिट। अंडरस्टूड? विच इज डिपेंड अपॉन द पास्ट प्रॉफिट अबाउट द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर? क्या होता है ये, पास्ट प्रॉफिट के बेस पे हम लोग फ्यूचर का क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिसाइड करते हैं, और उसको ही क्या बोला जाता है, एफएमपी बोला जाता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एफएमपी मेथड में देयर आर सर्टन मेथड्स और देयर आर सर्टन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप्स होता है कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। अगर आपने एफएमपी कैलकुलेट कर लिया तो विद इन अ सेकेंड आपको गुडविल आ जाएगा। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टास्क है दैट इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। Okay, so let's see how the FMP has to be calculated. Okay, while calculating the FMP, what you have to do, you have to make a table like this. Okay, जितना भी years आपको दिया रहेगा, अगर सम में दिया रहेगा पास्ट 3 years का प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है, 3 years का कॉलम बनाना है। पास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया रहेगा तो 4 years का कॉलम बनाना है। जितना भी ईयर्स का पास्ट प्रॉफिट ऑलरेडी सम में दिया रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। Okay, past year profit will always given in the sum.
ओके, तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, सबसे पहले हमको पास्ट प्रॉफिट लेना रहेगा जो ऑलरेडी सम में दिया हुआ रहेगा। क्लियर व्हाट आई सेड? सो व्हाट इज पास्ट प्रॉफिट? ओके, पास्ट प्रॉफिट इज जो ऑलरेडी सम में दिया रहेगा। अभी उसके आगे हमको करना क्या है, एड एक्सपेंसेस नो लॉन्गर पेबल। ओके, उसमें हमको क्या, अभी मैंने क्या बोला, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में फ्यूचर का प्रॉफिट डिसाइड करना रहता है, समझे? तो अभी पास्ट प्रॉफिट में वो हम ले लेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का प्रॉफिट। उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में हम लोग नहीं पे करने वाले। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ईयर में क्या किया था, मैंने मैनेजर को सैलरी दिया था। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक असिस्टेंट मैनेजर रखा था और उसको मैंने सैलरी दिया था फॉर कोई स्पेशल वर्क के लिए। ओके, लेकिन फ्यूचर में मैं वो मैनेजर को नहीं हायर करने वाली हूँ। तो जब मैं वो मैनेजर को नहीं हायर करने वाली तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगी, उसको सैलरी भी नहीं दूंगी, तो वो मेरा पैसा बच जाएगा। तो जब वो मेरा पैसा बचेगा तो वो पैसे को मैं क्या करती हूँ, पास्ट प्रॉफिट में ऐड कर दूंगी। क्लियर व्हाट आई सेड? तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंसेस नो लॉन्गर पेबल। ऐसा एक्सपेंस जो आप पास्ट में पे करते थे लेकिन फ्यूचर में नहीं पे करने वाले हो, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। वंस अगेन आई एम सेइंग, क्या करना है, ऐसा एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल रेंट, आपने रेंट लिया था, रेंट पे आप बिजनेस चलाते थे तो आप रेंट पास्ट ईयर में पे करते थे, लेकिन फ्यूचर में आपने खुद का प्रॉपर्टी ले लिया तो अब आपको रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो जब आपको रेंट पे करने की जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड दैट एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंस को क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, लेस इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल। सेम उसी की तरह, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रीवियस ईयर में कुछ इनकम मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था, कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका आपको इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अभी वो इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो गया है। जब उसका मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो गया है तो डेफिनेटली फ्यूचर में तो आपको इनकम नहीं मिलने वाला है। तो जब फ्यूचर में वो इनकम आपको नहीं मिलने वाला है तो आप क्या करोगे, अपना जो प्रॉफिट है वो कम दिखाओगे ना। अभी फॉर एग्जाम्पल 2019 में मैंने कितना 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया था, लेकिन वो 20,000 में 2,000 मेरा इंटरेस्ट था जो मुझे इन्वेस्टमेंट से मिला था। क्लियर? अब जब मैं फ्यूचर का प्रॉफिट डिसाइड करूंगी, 2021 का अगर मैं प्रॉफिट डिसाइड करूंगी तो मैं क्या करूंगी, जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेस कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अब 2019 में मैं क्या करूंगी, 18,000 का ही प्रॉफिट दिखाऊंगी, है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है वो इनकम, वो इंटरेस्ट मुझे 2021 में नहीं मिलने वाला है। क्लियर व्हाट आई सेड? सो दैट इज ऐसा इनकम जो पास्ट में मिला था लेकिन फ्यूचर में आपको नहीं मिलने वाला है, उसको आपको क्या करना रहता है, लेस करना रहता है। तो स्टूडेंट अब इसको याद कैसे करना है, क्या होता है, एक्सपेंस हम हमेशा लेस करते हैं, लेकिन कौन सा एक्सपेंसेस लेस करते हैं, जो फ्यूचर का एक्सपेंस होता है वो लेस करते हैं। ऐसा एक्सपेंस जो फ्यूचर में हुआ था, पास्ट में हुआ था, फ्यूचर में नहीं होने वाला है, उसको हम लोग ऐड करेंगे, अपोजिट करेंगे। ऐसा इनकम जो फ्यूचर में, जो पास्ट में हुआ था लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ नहीं होने वाला है, उसको हम लोग क्या करते, लेस करते। जब हम लोग इसको लेस करते तो हमको क्या मिलता है, एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। क्या मिलता है हमको, एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। क्लियर व्हाट आई सेड? एक्सपेंसेस एंड इनकम जो हम लोग क्या किए थे, पास्ट में हुआ था लेकिन फ्यूचर में नहीं होने वाला है, उसको क्या करना रहता है, हमको अपोजिट करना रहता है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस हमेशा लेस होता है तो उसको ऐड कर देने का, और इनकम हमेशा क्या होता है, ऐड होता है तो उसको लेस कर देने का। कौन सा वाला, पास्ट वाला एक्सपेंस और पास्ट वाला इनकम क्या करना रहता है, अपोजिट करना रहता है। क्लियर व्हाट आई सेड? नेक्स्ट वन, ये होने के बाद हमको क्या निकालना रहता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना रहता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना हो आपको सबको पता है। क्या करना रहेगा आपको, टोटल प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल कितने साल है, 3 साल है, तो आपको 3 से डिवाइड करना है। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर? आफ्टर देन नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड इनकम लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर। वेरी सिंपल, फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि कुछ इनकम आप अर्न करने वाले हो, फॉर एग्जांपल आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको पता है 2021 के एंडिंग में उसका इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको ऐड करोगे। इनकम जो फ्यूचर में होने वाला है वो डेफिनेटली ऐड होता है। एक्सपेंस जो फ्यूचर में होने वाला है वो डेफिनेटली क्या करोगे, आप उसको लेस करोगे। वेरी क्लियर, नो डाउट इन दैट।
पास्ट का इनकम फ्यूचर में नहीं होने वाला है, उसको आप क्या करोगे, लेस करोगे। पास्ट का एक्सपेंस फ्यूचर में नहीं होने वाला है, उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। फ्यूचर का इनकम है तो इनकम तो हमेशा ऐड होता है। फ्यूचर का एक्सपेंस वो हमेशा क्या होगा, लेस होगा। वेरी क्लियर। ये करने के बाद हमको क्या मिलता है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, ये मिलने के बाद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेट नॉन ट्रेडिंग इनकम, वो भी हमको क्या करना रहता है, लेस करना रहता है। अभी आप बोलोगे नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या होता है। ओके, नॉन ट्रेडिंग इनकम इज अ सच टाइप ऑफ इनकम विच इज नॉट द ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोल सकते हो उसको, विच इज नॉट द ऑपरेटिंग इनकम। अभी आप बोलोगे व्हाट इज ऑपरेटिंग इनकम, क्या होता है ऑपरेटिंग इनकम। इट इज अ सच टाइप ऑफ इनकम विच इज कलेक्टेड ऑन द रेगुलर बिजनेस कोर्स ऑफ योर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, तो बिजनेस में जो आपका इनकम होता है सेल्स के द्वारा ही होता है, तो जो सेल्स होता है दैट इज योर ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन आपने उसका इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है कि नहीं, आपने अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो उसके द्वारा आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। वो आपका क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग इनकम होता है। क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग इनकम। सो इनकम फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, ओके, दैट ऑल इनकम इज कंसिडर्ड नॉन ट्रेडिंग इनकम। और वो उसको क्या करना रहता है, आपको लेस करना रहता है। क्लियर व्हाट आई सेड, वो लेस करोगे तो आपको क्या मिलता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट। वंस यू गेट द ट्रेडिंग प्रॉफिट, what you have to do, you have to less the tax rate will always given in the sum, 50%, 35%, 25%, जो भी टैक्स रेट दिया रहेगा वो टैक्स रेट सम में दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना रहेगा, लेस करना रहेगा। पता है ना, टैक्स हमेशा लेस होता है प्रॉफिट में से, वो लेस करोगे द फाइनली यू विल गेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या मिलेगा आपको, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Once you get the future maintainable profit, within a second you will calculate the goodwill. Once again I am revising. सबसे पहले आपको FMP कैलकुलेट करने के लिए क्या करना रहता है, पास्ट प्रॉफिट में क्या करना रहेगा, कोई एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में हुआ था, जो पास्ट में हुआ था फ्यूचर में नहीं होने वाला है, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इनकम जो क्या हुआ था, पास्ट में हुआ था फ्यूचर में नहीं होने वाला, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ये दोनों करने के बाद आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो आपको सबको पता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये होने के बाद अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में अगर कुछ इनकम हो रहा है तो इनकम तो हमेशा ऐड होगा, पास्ट में अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, लेस होगा। वो दोनों करने के बाद इन केस अगर कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है तो दिया रहेगा तो लेस करने का, नहीं दिया रहेगा तो इग्नोर। ओके, वो माइनस करने के बाद क्या करना है, आपको टैक्स माइनस करना है। टैक्स माइनस करने के बाद व्हाट यू विल गेट, FMP। तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ FMP। वंस यू कैलकुलेट द FMP, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to calculate the goodwill. Understood? So second steps is what, calculation of goodwill. So how you will calculate the goodwill, which method we are learning number of years of purchase of FMP method. So in that the number of years will be common. So goodwill is equal to number of years of purchase multiply by FMP. एग्जाम में आपको दिया रहेगा calculate goodwill as per 3 years ऑफ परचेस ऑफ FMP मेथड। तो वहाँ पे 3 years दिया रहेगा, तो जो 3 years होगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो वो 3 years को आप क्या करोगे, FMP से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दैट इज योर गुडविल। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है हमेशा एक, जो उनका पास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है वही उनका नंबर ऑफ ईयर्स होता है। सो ये गलती हमेशा नहीं करने का। पास्ट ईयर प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल कोई सम में दिया रहता है पास्ट 4 years का प्रॉफिट, तो वो क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते समय भी नंबर ऑफ ईयर्स 4 ही लेंगे, नहीं, आपको नंबर ऑफ ईयर्स स्पेसिफाई किया रहता है। वो इट कैन बी 2 years, इट कैन बी 3 years, इट कैन बी 4 years, वो स्पेसिफाई किया, मतलब फ्यूचर का जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो दिया रहता है। सो दैट यू हैव टू टेक, उसको आपको क्या करना है, FMP से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल। क्लियर व्हाट आई सेड? ओके, सो आई थिंक सो दैट मैथड इज अंडरस्टूड वेरी वेल. The first method is number of years of purchase of FMP method. Okay. In the next slide or in the next lecture,
Understood? In the next lecture, we are going to learn about the other three methods. That is, the second one is number of years of purchase of super profit method. Second one, third one is what? Capitalization of FMP method. And fourth one is what? Capitalization of super profit method. तो ये जो तीन मेथड है हम लोग आगे के लेक्चर्स में क्या करेंगे? लर्न करेंगे. तो आज के लेक्चर्स के लिए दैट इज इनफ. So hope you like my lectures, you understood what I explained to you all. Okay, if you like, please subscribe my channel, share your friends, and also stay connected with me. So I will going to bring all topic of financial accounting. Okay, stay safe, stay healthy. Okay.